ویلکم بیک۔ فیک نیوز پھیلانے والوں کو 3 سال قید یا 20 لاکھ روپے جرمانہ ہو سکے گا۔ قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ صحافیوں کا پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ تحقیقاتی ایجنسی سوشل میڈیا پر غیر قانونی سرگرمیوں کی تحقیقات کرے گی۔ ایجنسی کا سربراہ ڈائریکٹر جنرل ہوگا۔ تعیناتی 3 سال کے لیے ہوگی۔ اتھارٹی کے افسران اہلکاروں کے پاس پولیس افسران کے اختیارات ہوں گے۔ آپ کو بتاتے چلیں کہ فیک نیوز پھیلانے والوں کو 3 سال قید یا 20 لاکھ جرمانے ہو سکے گئے۔ قومی اسمبلی میں پیکا ایکٹ میں ترمیم کا متنازع بل کثرت رائے سے منظور کر لیا گیا ہے۔ صحافیوں کے پریس گیلری سے واک آؤٹ۔ پیکا قانون ہتھیار کے طور پر استعمال کیا جائے گا۔ حکومت میڈیا اور سوشل میڈیا کو کنٹرول کرنا چاہتی ہے۔ اپوزیشن لیڈر عمر ایوب نے پیکا بل کو مسترد کر دیا۔ کہا ہم آزاد صحافت کے ساتھ کھڑے ہیں۔ کل سینٹ میں بھرپور احتجاج کیا جائے گا۔ ہتھیار بنائے جائیں گے پاکستان کے میڈیا کے خلاف، سوشل میڈیا کے خلاف، اور چھوٹی چھوٹی چیزیں جس کے اوپر پریشر بنایا جائے گا۔ ہم لوگ اس چیز کو کنڈیم کرتے ہیں۔ سینٹ میں بھی کل پی ٹی آئی اور ہماری حلیف جماعتوں کی طرف سے اس کے خلاف شدید مزاحمت ہوگی۔ ہم لوگ آزاد صحافت کے لیے کھڑے ہوں گے۔ صحافی تنظیموں کی جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے پیکا ایکٹ میں ترمیم کا بل مسترد کر دیا۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی نے کہا ایکٹ میں ترمیم صحافیوں سے مشاورت کے بغیر کی جا رہی ہے۔ کسی صحافی تنظیم یا کسی ممبر سے ترمیم کا مسودہ شیئر نہیں کیا گیا۔ حکومت سے درخواست ہے اسٹیک ہولڈر سے بغیر مشاورت پیکا ایکٹ میں ترمیم نہ کریں۔ جوائنٹ ایکشن کمیٹی پی ایف یو جے، اے پی این ایس، سی پی این ای ایم اینڈ اور پی بی اے پر مشتمل ہے۔ ڈیجیٹل میڈیا پر صحافت کے نام پر الزام تراشی کی جاتی ہے۔ قواعد و ضوابط وقت کی اہم ضرورت ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کی صحافیوں سے گفتگو۔ کہا کہ نئے قانون سے کوئی صحافی متاثر نہیں ہوگا۔ یہ ہرگز ڈیکونین قانون نہیں ہے۔ سوشل میڈیا سے کمائے جانے والے ڈالر پاکستان نہیں لائے جاتے بلکہ امریکہ اور یورپ میں ہی ایجنٹوں کے ذریعے وصول کیے جاتے ہیں۔ میڈیا کے اوپر جو مرضی کرے، کسی قسم کا کوئی قانون لاگو نہیں ہوتا۔ کیا وجہ ہے کہ واجب القتل قرار دیں، کسی پہ بلاسفیمی کا الزام لگائیں، کسی کو کہیں کہ اس کا گھر توڑ دو، آگ لگا دو، کوئی اتھارٹی اس کا نوٹس نہیں لے سکتی۔ کوئی بھی شخص جو پیشہ صحافت سے منسلک ہے یا وہ صحافی ہے یا ورکنگ جرنلسٹ ہے، وہ اس بل سے افیکٹ نہیں ہوتا۔ یہ ڈریکونین نہیں ہے۔ جتنے ڈالر آتے ہیں، کیا پاکستان کی اکانومی میں ڈالر آتے ہیں؟ ہر کسی کا ایجنٹ یورپ میں بیٹھا ہے، امریکہ میں بیٹھا ہے، یو کے میں بیٹھا ہے، وہیں پہ ڈالر ادا ہوتے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی نے حکومت سے مذاکرات ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ چیئرمین تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کہتے ہیں حکومت کو 7 دن دیے تھے لیکن اب تک کمیشن نہیں بنایا گیا۔ تمام اپوزیشن کو اکٹھا کر کے جدوجہد شروع کریں گے۔ صاحبزادہ حامد رضا نے کہا حکومت کمٹمنٹ پوری نہیں کرتی تو ایسے مذاکرات کا کیا فائدہ؟ جوڈیشل کمیشن بننے کی صورت میں ہی مذاکرات کیے جا سکتے ہیں۔ نے آج مذاکرات کال آف کر لیے، اس کے بعد ہماری کوئی مذاکرات نہیں ہوگی۔ فیوچر کا لائحہ عمل بھی خان صاحب نے دے دیا۔ ہم سارے جو اپوزیشن کی پولیٹیکل پارٹیز ہیں ہم ان کو کنٹیکٹ کریں گے۔ ساری پولیٹیکل پارٹیز کو مل کے اپنا جدوجہد وہ شروع کریں گے۔ خان صاحب پہلے بھی کہہ چکے ہیں ہمیں کسی بھی بیرون ملک کے مدد کی انتظار نہیں ہے۔ خان صاحب کی طرف سے ہدایت آ گئی ہے، آج جوڈیشل کمیشن 2 بنتے ہیں تو مذاکرات کا اگلا راؤنڈ ہو سکتا ہے۔ اگر آج نہیں بنتے تو مذاکرات کال آف۔ مذاکرات ختم ہو گئے تو اب پی ٹی آئی کیا دوبارہ سڑکوں کا رخ کرے گی؟ بڑی جگہوں کا رخ کریں گے، سڑکیں حاضر ہیں۔ ڈی چوک کسی کے باپ کی جاگیر ہے، کیوں نہیں کر سکتے؟ یقیناً کریں گے اگر ہمیں ضرورت محسوس ہوئی۔ سول نافرمانی اب فل تھروٹل پہ جانے کے چانسز ہیں۔ حکومتی کمیٹی کی پی ٹی آئی کو مذاکرات بحال کرنے کی درخواست۔ عرفان صدیقی کہتے ہیں کہ مذاکرات کی خواہش پی ٹی آئی کی تھی اور وہ لوگ جس بےتابی سے آئے اتنی ہی جلدی واپس بھی چلے گئے۔ تحریک انصاف کو تحریری مطالبات پیش کرنے میں 42 روز لگے اور ہم سے کہتے ہیں کہ 7 روز میں فیصلہ کریں۔ عرفان صدیقی نے درخواست کی کہ ابھی مت جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ آنے کی بھی بےتابی تھی اور جانے کی بھی جلدی ہے بہت۔ ہم انہیں کہتے ہیں کہ ابھی نہ جائیں، کچھ دن ٹھہر جائیں۔ ہم تو 28 دن کی تاریخ دے چکے ہیں اسپیکر صاحب کو، آپ اجلاس بلائیں، ہم تمام ان کے مطالبات کے بارے میں موقف لے کے آئیں گے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اپنی پارٹی کے بانی کی رائے سے ہٹ کے ری کنسیڈر کرنا چاہیے اگر ان کے اختیار میں ہے۔ اپنی ایک رائے بنا سکتے ہیں علی گوہر صاحب، عمر ایوب صاحب یا دوسرے لیڈر۔ ہماری اپیل ہوگی کہ وہ اس پہ ضرور غور کریں اور اس عمل کو نہ چھوڑیں۔ مذاکرات کا یہ عمل ان کی پیش رفت پہ شروع ہوا تھا اور خود خواہش کی تھی کہ ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں۔ 42 ڈیز لگے ان کو
अपने मुतालबात लाने में, और हमसे ये तकाजा है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर उन तमाम निकात का जवाब दे दें। वो 7 वर्किंग डेज पूरे होते हैं 28 तारीख को, और हम 28 की डेडलाइन को मीट करने के लिए अब भी बड़ी तंदही से काम कर रहे हैं। किस चीज़ की तहकीकात के लिए कमीशन बनाए, गुनाह बेलज़्ज़त हो रहा था वो आज मुक गया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का तहरीक इंसाफ के ऐलान पर रद्द-ए-अमल, कहा जुडिशल कमीशन का इशू बनाकर मुज़ाकरात ख़त्म किए गए। मुज़ाकरात वालों को भी पता था कोई नतीजा नहीं निकलेगा। पीटीआई वाले अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं। अली अमीन गंडापुर एतराफ़ कर चुके, उनके लोग गुमराह हुए। कमीशन का एक एक्सक्यूज बना के उन्होंने मुज़ाकरात खात्मा किया। किस चीज़ का जुडिशल कमीशन बनाना है, ये मुझे कोई बताए। गुनाह बिलज़्ज़त था जो हो रहा था और वो आज मुक गए। मुज़ाकरात करने वालों को भी कोई शक नहीं था कि ये मुज़ाकरात कहीं जो है सिरे नहीं चढ़े। मैं ज़रा ओपनली कहता था, वो लोग जो मसलत से काम लेते थे, ये किसी बात में भी मुखलिस नहीं। ये मेरा ख्याल है अपने लीडर से भी मुखलिस नहीं है। अली अमीन गंडापुर बार बार कह रहे हैं कि हमारे लोग गुमराह हो गए, यानी उन्होंने इतराफ़े जुर्म जो है वो किया है लेकिन उसको गुमराही पे डाल दिया है। वो तमाम लोग जिनको सजाएं हुई हैं उन्होंने कन्फेशंस की हैं। ये एक्सक्यूज ही जो है इसके बेसिस ही कोई नहीं है। सेनेटर फैसल वाडा कहते हैं कि ट्रम्प कार्ड की हवा निकल गई। ट्रम्प कार्ड का इंतजार करने वाले अब प्ले कार्ड लिए फिरते रहेंगे। ARY न्यूज़ से गुफ्तगू में उनका कहना था कि पीटीआई और हुकूमत दोनों चाहते हैं कि बानी पीटीआई जेल में रहें। सारे मज़े पीटीआई वालों के लिए और मुश्किलात बानी पीटीआई के लिए हैं। जग हसाई करने के लिए अब ये बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। बता दिया था कि मज़ाकरात भी मजाक है और ये मज़ाकरात खत्म होने थे और हो गए। पीटीआई और गवर्नमेंट का हदफ एक था, वो चाहते थे गवर्नमेंट का मुखालिफ बानी पीटीआई जेल में रहे और पीटीआई भी ये चाहती थी कि वो जेल में रहे। गवर्नमेंट की आज की जमानती जो है वो पीटीआई खुद है। जो ये कह रहे हैं कि हम कोई तहरीक चलाएंगे या जो एहतजाज करने के लिए अपोजिशन पार्टियों करेंगे, उस बारे से भी हवा निकल गई। ट्रम्प कार्ड की भी हवा निकल गई, मुज़ाकरात भी खत्म हो गए उसके मुताबिक जो मैंने आपको बताया था। आगे ये आखिर में जाके जगज़ाई करने के लिए पाकिस्तान के लिए कोई बैरून मुल्क कोई लेटर भी लिख देंगे। हुकूमत इस तरह चलती रहेगी, ये उनके साथ ड्रामे करके, प्ले कार्ड करके, समझौते करके, मजे लेकर, इक़्तिदार के भी, दौलत के भी, फैसिलिटेशंस के भी, और ये इस तरह गवर्नमेंट चलाते रहेंगे। यहाँ पे आपको खबर देंगे, पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब कर लिया गया है और पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में अहम कानून साजी होगी। अजहर फारूक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। अजहर बताइएगा। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास कल सुबह 10 बजे तलब किया गया है। सदर आसिफ अली जरदारी ने पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास वज़ीर आज़म की एडवाइस तलब किया है। इस इजलास में अहम कानून साजी होगी। जो कवानीन एक हाउस से पास हुए और दूसरे से पास नहीं हो सके थे, उनको कल पार्लियामेंट के मुश्तरका इजलास में जो है मंजूरी के लिए पेश किया जाएगा। सेनेट का इजलास जो कल सुबह 10 बजे होना था, उसके वक्त जो है वो तब्दील कर दिया गया है। अब सेनेट का इजलास कल 2:30 बजे होगा, जिसमें पीका तरमीमी एक्ट 2025 जो है वो मंजूर कराया जाएगा। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का जामियात की कानून साजी वापस ना लेने का ऐलान, कहा हुकूमत को इसका काम करने दें। कराची में तकरीब से खिताब में कहा, बाज़ वाइस चांसलर माली फ्रॉड में मुलव्वस निकले, उन्हें निकाला तो अदालत से हुक्म इम्तना ले आए। बाहर से वफ्द आया, उनके नाम पर होटल और टिकट के पैसे एक वाइस चांसलर खा गया। बाद में वफ्द ने खत लिखा कि सारा खर्चा उन्होंने खुद उठाया। वज़ीर आला सिंध ने ये पेशकश भी की, प्रोफेसर मैदान में आए, वाइस चांसलर बने, किसने रोका है? वाइस चांसलर थे, मैं नाम नहीं लूंगा, उन्होंने फ्रॉड किए, कोर्टों से जाके स्टे भी ले आते थे। अनफॉर्चुनेटली ये PhD थे, प्रोफेसर थे, जो आजकल कुछ हंगामे भी डाल रहे हैं। एक साहब ऐसे थे जिन्होंने बाहर से एक डेलीगेशन आया, उसकी टिकट्स और होटल के पैसे क्लेम किए, और वो जब उस डेलीगेशन को पता चला तो उन्होंने खत लिखा कि हमने खुद अपनी टिकट भरी है, लेकिन मैं उसको निकाल नहीं सका हूं आज तक। अब आप मुझे बताएं, वो कानून को मेरा फर्ज है एज द लेजिस्लेटर चेंज करना चाहिए कि मेरे सूबे के बच्चों को बेहतर लोग मिले या ना मिले। हुकूमत को अपना काम करने दे, हुकूमत अपना काम करेगी। वज़ीर तालीम सिंध सरदार शाह कहते हैं कि कराची बोर्ड रिजल्ट तनाज़े पर कमेटी के TORs तय कर लिए हैं। जो बच्चे समझते हैं कि नाइंसाफ़ी हुई है वो शिकायत दर्ज करवा दें। वालिदैन और बच्चों को यकीन दिलाता हूँ, ज़्यादती या नाइंसाफ़ी हुई है तो इंसाफ मिलेगा। जिम्मेदारों की निशानदही की जाएगी, उन्हें सज़ा दी जाएगी। मामला हुआ है, इसको देखने के लिए हमने कुछ स्टेप्स तय किए हैं। पहला स्टेप ये है कि जो 29 तारीख को बोर्ड की मीटिंग, इसी कमेटी की मीटिंग जो हुई है, उसमें प्रीवियस एक कमेटी बनी थी सरोज लोधी साहब की,
चेयरमैनशिप में जिन्होंने इस मैटर की तफ्तीश की थी कि वहाँ पे ये मामला हुए हैं या नहीं हुए हैं, तो हमने कहा कि जो पहले इंक्वायरी हो चुकी है उसकी फाइंडिंग्स जो है वो यहाँ पे पेश की जाए, जो यूनिवर्सिटीज और बोर्ड डिपार्टमेंट जो है वो वहाँ पे लाएगा और पेश करेगा। दूसरा ये हमने किया कि कलेक्शन ऑफ द कंप्लेंट्स, जो भी बच्चे समझते हैं या उनके वालिदैन समझते हैं कि हमारे साथ ज्यादती हुई है, हमारी लियाकत को सही तरीके से परखा नहीं गया है, तो वहाँ पे वो अपनी कंप्लेंट्स सबमिट करवाएंगे। बच्चों को ये यकीन दिलाता हूँ कि इस कमेटी की मौजूदगी में किसी भी कीमत पे जो आपके साथ अगर ज्यादती हुई है, अगर आपके साथ नाइंसाफी हुई है, तो उसका अजाला होगा। हम उन सब किरदार को हम सामने लाएंगे जिन्होंने इसमें अगर कोई कोताही। न्यू कराची से 7 साला सारिम की लाश मिलने का मामला, तहकीकाती टीम ने 2 मजीद अफराद को हिरासत में ले लिया। जेर हिरासत अफराद की तादाद 9 हो गई। पुलिस हुकाम ने बताया गुज़श्ता रोज 7 अफराद के DNA के लिए ब्लड सैंपल लिए गए थे। लेबॉर्ट्री की डिमांड पर सारिम के वालिद और बेटे का सैंपल भी लिया गया। मुश्तबा हरकत पर मजीद 2 अफराद रात गए अपार्टमेंट से हिरासत में लिए गए। दोनों से तफ्तीश के बाद दोनों का ब्लड सैंपल भी भेजा जाएगा। तफ्तीशी टीम के साथ एक IT एक्सपर्ट को भी शामिल किया जाएगा। DNA रिपोर्ट और फॉरेंसिक रिपोर्ट से तफ्तीश आगे बढ़ेगी। कराची के इलाके गुलशन हदीद में लूटमार की बड़ी वारदात हुई है। डाकू घर से 95 लाख नकद सोना लेकर उड़े हैं। इस पर तफसील क्या है जानते हैं, सलमान लोधी हमारे साथ मौजूद हैं। सलमान लोधी बताइएगा। देखिए, मलीर जिले का ये इलाका है गुलशन हदीद, यहाँ पे रवा साल की डकैती की सबसे बड़ी वारदात हुई है। 1 करोड़ मालियत से जायद की रकम और जेवरात लूट कर फरार हुए। वारदात कार शोरूम डीलर के घर पर ही वारदात हुई। 5 मुसल्लह अफराद घर पर आए। घर वालों को असले के जोर पर यरगमाल बनाया हुआ है। 95 लाख रुपए रकम और 5 लाख से जायद मालियत के जेवरात ही छीन कर फरार हो गए। वाक़ये का मुकदमा स्टील टाउन थाने में डकैती की दिफात के तहत दर्ज कर लिया गया। पुलिस ने मुल्ज़िमान की शरारत तलाश शुरू कर दी। बहुत शुक्रिया सलमान लोधी। रावलपिंडी के इलाके कायद आज़म कॉलोनी में दिन दिहाड़े लूट मार की वारदात। बच्चों को स्कूल से वापस लाने वाली खातून से डाकू ने तलाई जेवरात लूट लिए। बाबर मलिक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मजीद जानेंगे। जी बाबर। आज ये थाना दमियाल का इलाका है कायद आज़म कॉलोनी में, और इस खातून जो अपने स्कूल से बच्चों को स्कूल लेके आई और घर के गेट के बाहर पहुंची, जिस पर मोटरसाइकिल सवार डाकू जो है वो यहाँ पे पहुंचे और उन्होंने खातून से 4 तलाई चूड़ियाँ जो है वो छीनी है और खातून से मोबाइल फोन और दीगर सामान बच्चों के सामने लूट मार करते हुए लूट के फरार हो गए हैं। सीनियर पुलिस ऑफिसर्स जो है हुकाम यहाँ पे पहुंचे हैं। इस वाक़े के हवाले से CCTV फुटेज के हवाले से और दीगर मामला के हवाले से पुलिस की तहकीकात जारी हैं। जबकि रावलपिंडी में हालिया दिनों में स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में इजाफे के ऊपर पुलिस हुकाम की जानिब से पेशगी इक़दाम करने की भी हिदायत जारी की गई है। ताहम इस खातून के साथ इसके घर के बाहर लूट मार की गई और इसके तलाई जेवरात नोचे गए। मिसिस आमिर की दरख्वास्त पर पुलिस जो है उनकी इस हवाले से तहकीकात भी कर रही है और FIR के इंदराज के हवाले से भी कानूनी चाराजोई की जा रही है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका अपडेट करने के लिए। वापिस आएंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। कराची में खातून को तशद्दुद के बाद गला दबाकर कत्ल कर दिया गया। मुलजिम ने ससुर को फोन करके कहा कि तुम्हारी बेटी को मार दिया है, लाश ले जाओ। लड़की की मां ने बताया कि शौहर अक्सर मारपीट करता था, जिस्म पर तार से मारने के निशान होते थे। अफजल खान की रिपोर्ट देखिए। हर बार खामोशी से अपने शोहर का तशद्दुद सहने वाली 22 साला सबा इस बार जान से चली गई। बेरहम शोहर ने मार मार कर लहू लहान किया। इस दौरान सबा के दोनों कमसिन बच्चे रोते रहे। बाप फरार हुआ तो सहमे हुए बच्चे माँ की लाश से लिपट गए। पहले लड़ाई करता था, घर के अंदर फटे मटे मचाता था, बच्ची के साथ सुसुदी करता था। ये हमें से फोन करके बोला इसने कि जब बच्ची को लाश पड़ी वहाँ उठा ले प्लाट को जाकर। 5 बजे यहाँ पर आया, देखा तो बच्ची की लाश पड़ी है यहाँ पर। सबा ने 3 बरस कबल इरफान से पसंद की शादी की थी। बाद में मालूम हुआ कि इरफान नशे का आदी है। ये रोज इसको मारता था, शराबे पीता था। तो ये आती थी, तारों वारों से मार इसके निशान होते थे चेहरे पे, जिस्म पे। तो अब मैं कहती थी कि तू रुक जा। उसको फिर बार बार फोन करके उसको बुलाता था। ये फिर वापस गई है उसके पास। 2-3 दिन हुए इनके रहने, मारा पीटा बहुत है इसको, जिस्म पे निशान वगैरह थे। पुलिस का कहना है कि मुलजिम इरफान का आबाई ताल्लुक सादिकाबाद से है, जिसकी गिरफ्तारी के लिए कोशिशें कर रहे हैं। जाए वक़्वा से शवाहिद इकट्ठे कर लिए गए हैं। पुलिस का कहना है
کہ پوسٹ مارٹم ہونے کے بعد صبا کے قتل کا مقدمہ درج کیا جائے گا۔ کیمرامین یعقوب بلتی کے ساتھ افضل خان، ARY نیوز، کراچی۔ گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر کہتے ہیں پیپلز پارٹی کو سازش کے تحت جان بوجھ کر پنجاب میں کمزور کیا گیا۔ 2013 میں PP کے ووٹ چوری کیے گئے، آئندہ ایسا نہیں ہونے دیں گے۔ منڈی بہاؤدین میں عوامی اجتماع سے خطاب میں گورنر پنجاب نے کہا وہ گورنر ہاؤس میں بیٹھے ہیں، پیپلز پارٹی کا ووٹ چوری نہیں ہو سکتا۔ PP ورکر یا پنجاب کے کسی غریب کے ساتھ زیادتی ہوئی اور اس کے حق کے لیے کھڑا نہ ہو سکوں تو مجھے گورنر ہاؤس میں بیٹھنے کا حق نہیں۔ 79 رنز کی اننگز میں 68 رن صرف چھکوں اور چوکوں کے ساتھ بھارت کے ابھیشیک شرما نے انگلش باؤلنگ اٹیک کے پرخچے اڑا دیے۔ 150 کی رفتار والے بالرز کو نکل کر چھکے لگائے۔ 34 گیندوں پر 79 رنز کی طوفانی اننگز میں 5 چوکے اور 8 چھکے شامل اس کے ساتھ ہی نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہے۔ دیکھتے رہیے ARY نیوز۔